Hello students, so today we are going to start our lecture number 3 of group number 15. So let us start from where we left in the lecture number 2. In lecture number 2 we were discussing about the oxidation states. I discussed there about the +3 and +5 oxidation state in the end of that lecture. Now here you have to remember one thing, that the first element of this, that is nitrogen, it can exhibit all the oxidation state from -1 to +5. -3 से +5 तक की जितनी वेरी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं, all of those oxidation states are exhibited by the nitrogen. For example, in ammonia the oxidation state of nitrogen is -3. In hydrazine the oxidation state of nitrogen is -2. Even for hydroxylamine oxidation state of nitrogen is -1. In nitrogen dinitrogen the oxidation state of nitrogen is 0. In NCl3 oxidation state of nitrogen is +3. In N2O5 oxidation state of nitrogen is +5. In N2O oxidation state of nitrogen is +1. In NO nitrogen of oxidation state of nitrogen is +2. यहाँ पे भी आप NCl3 की जगह ऑक्साइड ही लिख लो, N2O3. In NO2 oxidation state of nitrogen is +4. So all the oxidation state ranging from -3 to +5 सब के सब, ये आगे पीछे हो गए, आप इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बीच में ले सकते हैं यहाँ पे. तो all different variable oxidation state will be exhibited by the nitrogen. Here you have to remember one thing, that phosphine डाइफॉस्फीन के फॉर्म में P2H4 भी एग्जिस्ट करता है, AS2H4 भी एग्जिस्ट करता है. सो लाइटर एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस. N2H4 है यहाँ पे, वो P2H4 ASHO4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी in this family which we have to discuss today is, that is maximum covalency. Maximum covalency among elements of group 15. Your nitrogen exhibit a maximum covalency of +4. Maximum covalency of +4. It will not be going to exhibit covalency more than 4. The reason for that is, ये +4 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, +4 की भी सॉरी कोवेलेंसी 4, ये कोवेलेंसी 4 कब शो करेगा, जब ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा. जैसे ये अमोनिया है, इसमें ये 3 बॉन्ड बने, 3 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं. नाउ इफ द अमोनिया शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर with this hydrogen atom, then in this ammonium ion the maximum bonds formed by nitrogen, that is your 4 covalent bonds. Nitrogen cannot extend its covalency beyond 4. 4 से ज़्यादा covalency नहीं हो सकती नाइट्रोजन की. Reason for that is, nitrogen do not have vacant d orbitals. Vacant d orbitals. नाइट्रोजन में वेकेंट d orbitals नहीं होते, इसलिए जो आपके एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है नाइट्रोजन में. जो आपके नाइट्रोजन के अंदर 2s2 2p3, अब आपके सेकेंड एनर्जी शेल में देयर इज नो d orbital, सो दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्साइटेड. दैट इज वाई nitrogen will exhibit an oxidation state, that is covalency, maximum covalency of 4. All other elements
of group 15, they can exhibit a maximum covalency of 5 or 6. यहां पे ये ध्यान रखना है, क्योंकि नाइट्रोजन आपकी 5 की कोवेलेंसी शो नहीं करता या अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाता, इसलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता. This question has been asked a number of times. Why NCl5 does not exist? NCl5 does not exist. The reason for that is the maximum covalency of nitrogen is only 4. It cannot extend its covalency. बाकी सभी elements, because they all have vacant d orbital in the valence shell, so they can expand their octet. ये अपने octet को expand कर सकते हैं. So they can extend their covalency. तो वो प्लस दैट इज दे कैन एग्जिबिट एन कोवेलेंसी ऑफ 5, जैसे PCl5 है, SbF5, एज वेल एज दे कैन ऑल्सो एग्जिबिट एन कोवेलेंसी ऑफ 6, जैसे PCl6 एनायन बन जाए, ये -1, SbF6 एनायन बन जाए. तो इनके अंदर जो है, इसमें जो कोवेलेंसी है दैट इज 6, और इन दोनों कंपाउंड में कोवेलेंसी कितनी है? 5. तो बाकी सभी एलिमेंट प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, दे कैन एक्सटेंड दियर कोवेलेंसी आइदर टू 5 और 6. सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi multiple bond. Tendency to form p-pi multiple bond. Among elements of group 15, nitrogen has maximum tendency. Nitrogen has maximum tendency to form p-pi bond, p-pi multiple bond. इसका कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन के अंदर जो p ऑर्बिटल हैं, दे आर 2p ऑर्बिटल्स विच आर स्मॉलर इन साइज, सो दे कैन इफेक्टिवली ओवरलैप. ये जो टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड है, दैट विल डिक्रीज एज वी विल गो डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड डिक्रीज करती चली जाएगी. आल्दो द अदर एलिमेंट्स कैन फॉर्म p-pi bond, they can form p-pi bond with other elements, but they among themselves have a very little tendency to form p-pi multiple bond. And this is the reason that nitrogen exists as diatomic molecule. नाइट्रोजन जो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका कारण यही है कि नाइट्रोजन के अंदर आपस में, क्योंकि p-pi बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, सो नाइट्रोजन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स. सो नाउ बिकॉज दिस मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू इंटरेक्ट विद अदर एलिमेंट्स, अदर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनकी आपका ऑक्टेट पूरा हो गया है, p-pi मल्टीपल बॉन्ड बनने से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंट्रैक्शंस नहीं रखेगी, या यूं कह लीजिए बहुत वीक इंट्रैक्शंस होंगी बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन. दैट इज व्हाई योर नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए गैस. तो नाइट्रोजन जो है इसमें वो हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है. इट ऑलवेज फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल. बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, दे फॉर्म टेट्राएटोमिक मॉलिक्यूल. जैसे phosphorus will be existing as PS4, arsenic will be existing as AS4, and in case of phosphorus they form this type of structure. This is the structure of white phosphorus. So they are forming the 3 covalent bonds with 3 other phosphorus atoms. So they will be existing as tetraatomic molecules. बाकी सब के सब किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. सो दिस इज अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग रिएक्टिविटीज विद डिफरेंट एलिमेंट्स. ये भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज के हेडिंग में ही पढ़ सकते हैं. सो द फर्स्ट
compounds of group 15 which we are going to discuss is reaction with hydrogen, reaction with hydrogen, formation of hydrides, reaction with hydrogen or formation of hydrides. हमारे जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, दे ऑल कंबाइन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स विद जनरल फार्मूला EH3. कैसे हाइड्राइड बनते हैं? जिसमें जनरल फार्मूला है हमारा EH3, वेयर योर E इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ. ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट हो सकता है. सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म. नाइट्रोजन जो है दैट कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. Your phosphorus will combine to form PS3. This will be called phosphine. ASH3. This is called arsine. SbH3. This is called stibine. BiH3. That is bismuthine. So these are the hydrides formed by your elements of group 15 on combination with hydrogen. Remember that these lower elements, lighter elements कह लीजिए, lower elements कह लीजिए, these lighter elements also form hydrides like N2H4, P2H4, AS2H4. So they also form this. This is called hydrazine. This is your diphosphine. This is arsine. So now let us discuss their methods of preparations, how they are prepared. So we will be discussing about the trihydrides. In case of अमोनिया, नाइट्रोजन जो है दैट कंबाइन डायरेक्टली विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन एंड प्रमोटर मोलिब्डेनम एट ए टेम्परेचर ऑफ 770 केल्विन टू गिव यू 2NH3 गैस. मैंने अभी बताया था कि आपके जो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 है दे कैन आइदर कंबाइन डायरेक्टली और दे कैन कंबाइन इनडायरेक्टली विद द योर हाइड्रोजन टू फॉर्म दिस हाइड्राइड. अदर हाइड्राइड्स एलिमेंट्स जो हैं दे कैन बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स. बाइनरी कंपाउंड्स अमोनिया भी बना सकते हैं हम बाइनरी कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस से. अगर हमने अमोनिया बनाना है वी विल बी टेकिंग अप मैग्नीशियम नाइट्राइड. व्हेन वी हाइड्रोलाइज इट विद वाटर it will give you 3 MgOH whole twice plus 2 NH3. So 6 water molecule will be utilized. If you wish to prepare phosphine, you can allow to react calcium phosphide with your water. Hydrolysis will be there. 3 CaOH whole twice plus 2 PH3. You can get phosphine. जो बाकी हाइड्राइड्स हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl. जैसे अगर हमने आर्सिन बनाना हो तो जिंक के बाइनरी कंपाउंड ले सकते हैं Zn3 AS2
प्लस HCl, डाइल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो 3ZnCl2, 6 HCl लगेंगे आपके, प्लस 2AsH3। इसी तरीके से अगर हम एंटीमनी का जिंक के साथ कंपाउंड ले लेंगे तो उसकी भी रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HCl के साथ, तो यू कैन गेट दिस। अब ये तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गए। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हो गया बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसमें मैंने नाइट्रोजन का लिखा। दूसरा हो गया बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी कंपाउंड। जो तीसरा मेथड है दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ ट्राइहैलाइड्स। थर्ड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग दीज हाइड्राइड इज बाय रिडक्शन ऑफ ट्राइहैलाइड्स, बाय रिडक्शन ऑफ ट्राइहैलाइड्स। इसमें यह ध्यान रखना है कि ट्राइहैलाइड की रिडक्शन से हम बिस्मिथ ट्राइहैलाइड्स की रिडक्शन से बिस्मिथ के हाइड्राइड्स नहीं बना सकते, बाकी सबके बना सकते हैं। और इनको जब भी बनाएंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हम यूज करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और यू विल बी गेटिंग द ट्राइहैलाइड्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। नाउ let us discuss about structure of these trihalides. Structure of trihalides, trihydride, sorry, structure of ammonia. I am taking the example of ammonia, then we will be discussing rest of these hydrides. नाइट्रोजन में आपको पता है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p3 and the total number of bonds which are to be formed are 3 because 3 hydrogens are attached to them and each hydrogen form a single bond, so 3 bonds are to be formed. So these 4 orbitals will undergo hybridization. sp3 hybridization होगी इसके अंदर, तो आपके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। They will be pointing towards the corners of 4 tetrahedra. This will be the situation. हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो नॉर्मली अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता तो ये बॉन्ड एंगल होता 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हम इस पे वेस्पर थ्योरी लगाएंगे तो दिस इज लोन पेयर एंड दिस इज योर बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर। सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, 11th में पढ़ाया था आपको। सो दीज हाइड्रोजन्स विल बी पुश्ड इनसाइड, थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश कर दिए जाएंगे। तो नाइट्रोजन अमोनिया विल बी हैविंग ए पिरामिडल स्ट्रक्चर, अमोनिया का पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा एंड बॉन्ड एंगल विल बी योर 107.8 डिग्री, 107.8 डिग्री। सो दिस इज द एंगल, बॉन्ड एंगल, this bond angle is this and this bond angle is reduced due to the greater lone pair bond pair repulsions. Now in case of other hydrides, अगर हम इस ग्रुप में नीचे जाएं NH3, PS3, ASH3, SBH3 and BiH3, then on going down the group the bond angle decreases. बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज करेगा आपका नीचे जाने पे। क्यों डिक्रीज करेगा? वो इसलिए डिक्रीज करेगा कि नाइट्रोजन के केस में तो क्या है कि आपका जो बॉन्ड पेयर है दैट इज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, द बॉन्ड पेयर्स आर क्लोज टू नाइट्रोजन, दीज आर क्लोज टू नाइट्रोजन, सो दीज बॉन्ड पेयर आर क्लोज. So when repulsive forces will be applied, their repulsive forces will increase. तो ये ज़्यादा अंदर की तरफ बैंड नहीं होंगे. अब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं the electronegativity of these elements are decreasing. So bond angle will decrease. ये 107.8 डिग्री है. अगर आप इससे नीचे जाओगे it will come to 93.8 डिग्री. फॉस्फीन के अंदर it is 93.8. I am taking up the data. आर्सेनिक में 91.8, स्टीबाइन में 91.3 और आपका बिस्मिथ में 90 डिग्री. तो आप जैसे नीचे आ रहे हैं तो बिस्मिथ के अंदर क्या हो रहा है, दिस बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी
approximately 90 degree, so it will appear as if no hybridization is taking place. ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी कोई किसी तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रही. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे द डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल इज ड्यू टू in decreasing electronegativity, due to decreasing electronegativity of element of group 15 on going down, on going down. जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, दिस बॉन्ड विल पेयर विल शिफ्ट स्लाइटली अवे फ्रॉम द फॉस्फोरस, और क्या होगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड पेयर दूर चलते चले जाएंगे, दिस डिस्टेंस विल बी मोर, तो जब ये रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे हाइड्रोजन विल बी पुश्ड मोर इनसाइड, ये ज़्यादा अंदर की तरफ पुश कर दिए जाएंगे ये वाले हाइड्रोजन, सो बॉन्ड एंगल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15. नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स. The first property is, that is basic character. The first property which I am going to discuss is basic character. हमारे जितने भी हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 15 के, they all are having lone pair of electron on the central atom. सबके अंदर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो ऑल दीज हाइड्राइड्स एक्ट एज लुईस बेस, एक्ट एज लुईस बेस. सबके सब किसकी तरह काम करेंगे, लुईस बेस की तरह काम करेंगे. सो आपका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करेंगे ये, जैसे अमोनिया है, आई एम शोइंग यू विद एग्जांपल, व्हेन इट रिएक्ट विद सम एसिड इट विल टेक अप द प्रोटॉन. सो अमोनिया हैज डोनेटेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, दैट इज व्हाई दे ऑल एक्ट एज लुईस बेस. The basic character of these hydrides decreases on going down the group. जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, basic character of these hydrides, basic character of hydrides decreases on going down the group, on going down from nitrogen to बिस्मिथ. क्यों डिक्रीज करता है ये, नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ दीज हाइड्राइड्स इज थर्मल स्टेबिलिटी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज थर्मल स्टेबिलिटी. The thermal stability of hydrides of group 15 decreases down the group. It decreases on moving down the group from nitrogen to bismuth. कहने का मतलब है जब हम नीचे जाएंगे जैसे जैसे अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टीबाइन, बिस्मिथाइन, then thermal stability decreases. Now the question is why the thermal stability decreases? The answer to this why is, as we go down the group, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, the size of the group 15 element increases. So what happens is, as the size increases, your EH bond length
that is element hydrogen bond length, where E is the element of group 15. Bond length increases on going down, thus bond become weak, thus bond becomes weak. तो नीचे जाने पे साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड विल बिकम वीकर, सो दिस बॉन्ड विल बिकम ईजियर टू ब्रेक. सो वी कैन से थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स हीट करने पे किसी कंपाउंड का टूटना, दैट इज कॉल्ड द थर्मल स्टेबिलिटी. सो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप. दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी. द थर्ड प्रॉपर्टी इज रिड्यूसिंग करेक्टर. The third property of hydrides of group 15, that is your reducing character. The reducing character means power to reduce some other substance. किसी चीज़ की रिडक्शन करने के लिए कितने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. इसमें यह ध्यान रखना है that the reducing character of the hydrides of group 15, it is inversely proportional to thermal stability. मतलब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो ये आसानी से हाइड्रोजन देंगे, एंड यू नो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो जैसे जैसे थर्मल स्टेबिलिटी अभी डिस्कस किया हमने, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, तो हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप. सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीजेज ऑन going down the group because of decreasing thermal stability, because of decreasing thermal stability. थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पे डिक्रीज करती है, इसलिए आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्राइड्स दैट इंक्रीजेस. द फोर्थ प्रॉपर्टी which we are going to discuss here is, that is your solubility. Solubility in water. तो अगर हम बात करें तो among the hydrides of group 15, ammonia is highly soluble. It is highly soluble in water, and the solubility of ammonia in water is due to its ability to form hydrogen bond with water. ये पानी के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, जिसकी से वजह से अमोनिया में जो है सोलिबिलिटी क्या होती है, इट इज मैक्सिमम. बाकी हाइड्राइड जो हैं वो क्या हैं, लगभग दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, या यूं कह लीजिए नीचे जाने पे solubility of the hydride will decrease. The fifth and the last property of hydrides of group 15, that is the melting and boiling point. ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं, that is melting point and boiling points, ये ज़्यादातर volatile हाइड्राइड्स हैं. All hydrides of group 15, all hydrides of group 15 are volatile, that is they have low boiling points. Ammonia is having exceptionally high boiling point. इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है. क्यों हाई होता है, क्योंकि अमोनिया के अंदर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बाकी सभी एलिमेंट्स के बीच में देयर इज अ वंडरवॉल फोर्स. अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन
दैट इज स्टीबाइन एंड दैट इज बिस्मिथाइन। बाकी सभी के अंदर क्या है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, एज वी नो, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द मास, मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे वंडर वाल फोर्स बढ़ता है। तो नीचे जाने पे योर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज हाइड्राइड्स विल इंक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे नीचे जाने पे, इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज, ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज। इंक्रीजिंग साइज ऑफ सेंट्रल एटम की वजह से वंडर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेंगे। सो इफ वी डिस्कस अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, द डाटा फॉर दिस इज, अगर हम लिखें इसको, सभी के बॉइलिंग पॉइंट अगर मेंशन करें हम कि कितने कितने बॉइलिंग पॉइंट हैं, तो आप क्या देखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज 238.5 केल्विन्स, दैट ऑफ फॉस्फीन इज 185.5 केल्विन, दैट इज ऑफ आर्सिन इज 210.6 केल्विन, 254.6 केल्विन, 290 केल्विन। सो दीज आर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज हाइड्राइड्स। तो आप क्या देख रहे हैं, अमोनिया से जब हम फॉस्फीन पे आए एकदम से डिक्रीज हुआ। मैंने कहा अमोनिया का एक्सेप्शनली हाई है बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बाद में रेगुलर ट्रेंड है, नीचे जाने पे आपका वंडर वाल फोर्स बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो जो है दे आर आल्सो इंक्रीजिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजन, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। नाउ द नेक्स्ट thing which we have to discuss is reactivity towards oxygen. Reactivity towards oxygen, formation of oxides. नाइट्रोजन जो है that combine with oxygen to form reaction with oxygen, formation of oxide, formation of oxides. सो जो नाइट्रोजन है आपकी, जो एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के, वो सब के सब ऑल एलिमेंट्स कंबाइन विद ऑक्सीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑक्सीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू फॉर्म ऑक्साइड्स। सबके सब जो है ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। +1 ऑक्सीडेशन से स्टेट से स्टार्ट हो जाओ, N2O+, oxidation state is +1. Here I am writing the oxidation state. This is the compound. This compound is called nitrous oxide. It is also known as laughing gas. इसको हम laughing gas भी कहते हैं, because if this gas is inhaled in excess, then it causes laughing hysteria. बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दौरा पड़ता है बंदे को हंसने का, इतना ज़ोरदार दौरा पड़ता है कि उसको सांस ही नहीं आता और वो मर जाता है हंसते हंसते। सो दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। सेकेंड वन इज नाइट्रिक ऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, N2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। दिस डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड इज ऑल्सो रिटन एज like this. I will be discussing it in detail. That is why it is also called नाइट्रोसोनियम नाइट्राइट। इसको नाइट्रोसोनियम नाइट्राइट भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। देन NO2 और N2O4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये डाइमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लास्ट वन इज N2O5, इट आल्सो एग्जिस्ट एज NO2
NO3 minus. That is why it is also called nitronium nitrate. वैसे इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं. आइदर योर E2O3 और E2O5, ट्राई ऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड. बाकी सभी एलिमेंट्स जहां पे E क्या है आपका, E इज योर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ. सो बाकी जो है वो ट्राई ऑक्साइड या पेंटाऑक्साइड बनाएंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑक्साइड्स in the next lecture, that is the lecture number 4, because I think we are running short of the time today. So thank you very much. This is all about today's lecture.